મકર સંક્રાંતિની શુભકામનાઓ. કેટલી સુંદર ખુશી. તો માનસી મેમ એ સ્ટાર પ્લસ અને ગુજરાતના બ્રિજ, કલ્ચરલ બ્રિજ તરીકે આપણી વચ્ચે છે આજે. વી આર સો મચ હેપી ટુ હેવ યુ. અને આજે સ્ટાર પ્લસ એક અલગ જ વેવ સાથે આવી રહ્યા છે કે પહેલી વાર એવું થઈ રહ્યું છે કે લવ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે. આ સેલિબ્રેટ થઈ રહ્યો છે, સેલિબ્રેશન ઓફ રોમાન્સ સ્ટાર પ્લસ કરી રહ્યું છે, જેની અંદર આજથી શરૂઆત થઈ રહી છે. અને એમાં પણ અમદાવાદથી 15 જાન્યુઆરીથી લઈને 15 ફેબ્રુઆરી સુધીની આ શરૂઆત કે જેની અંદર આપણી વચ્ચે બીજા બધા એક્ટર્સ તો આવશે જ, પણ આઈ એમ સો મચ હેપી કે મેં સૌથી પહેલા તમને ઇન્વાઇટ કર્યા કે જેમણે શરૂઆત કરી હતી ફિલ્મ, સિરિયલ્સ ને બધી કેટલી નેશનલ પરફોર્મન્સીસ, અને પછી અત્યારે જે રીતે ગુજરાતીમાં મેમનું યોગદાન છે એ માટે આખું ગુજરાત આજે તમને આભારી છે મેમ. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ કે સ્ટાર પ્લસની જે હું જોતો હતો ગુલાલ, હા રાઈટ, અને બધી કેટલી સિરિયલ્સ તમે બ્યુટીફુલી પરફોર્મ કર્યું છે અને લોકોને હજી પણ એ જ ગુલાલ, મને ગુલાલના તમને મળો ને એટલી વખત એના ગ્લિમ્સ આવતા હશે, ઘણા બધાને આવતા હશે કે માનસી મેમને આપણે યાદ કરીએ તો ગુલાલના ગ્લિમ્સ આવે, સુમિત સંભાલેકર ને બધા. તો એ બહુ બ્યુટીફુલ છે વાત. અને આજે આપણી વચ્ચે માનસી મેમ છે તો ઉત્તરાયણનો પર્વ છે, દરેકે દરેક શેડ્સ ઓફ લવ ને આપણે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. અને એની સાથે સાથે સ્ટાર પ્લસ ના એક નવા શોની પણ આપણે અનાઉન્સમેન્ટ કરશું. તો પ્લીઝ મેમ, શું કહેવું છે તમારું? પહેલા તો બધાને જ મકર સંક્રાંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ. સોરી થોડું લેટ થઈ ગયું, યા ટ્રાફિક ઘણો હતો સર્કલ ઉપર, એટલે આવતા આવતા થોડી અટકી ગઈ હતી ગાડી. પણ હું બહુ ખુશ છું, એટલે કેમ કે દર વર્ષે હું અમદાવાદ આવું જ છું સંક્રાંતના દિવસે, કેમ કે અહીંયા પોળમાં પતંગ ચગાવવાની જે મજા છે એ મુંબઈમાં નથી. એટલે એવરી યર હું આવું છું, ને આ વર્ષે હું નહોતી આવવાની કેમ કે કામ હતું મુંબઈમાં. પણ જ્યારે સ્ટાર પ્લસ થી કોલ આવ્યો મને કે આવી રીતે લવ ઉત્સવ કરી રહ્યા છે, અને હું એટલી ખુશ થઈ ગઈ કે ડેફિનેટલી લવ ઉત્સવ માટે આ મહિનો કરેક્ટ છે મહિનો. અને આ અમદાવાદની આ પોળ છે આપણા બધાને એકદમ આપણા મનમાં બેસી જાય એવી સુંદર હવેલીમાં આજે આપણે અહીંયા આવી રહ્યા છે. અને સ્ટાર પ્લસ તો મારું ઘર જ છે, કેમ કે લાઈક યુ સેડ, મારી પહેલી સિરિયલ ઇન્ડિયા કોલિંગ થી લઈને ગુલાલ થી લઈને સુમિત સંભાલેકર, કેટલા સરસ સરસ શોઝ સ્ટાર પ્લસ સાથે કર્યા છે મેં. અને અમદાવાદ મારું બીજું ઘર છે, કેમ કે અહીંયા તો આવીને મને આનંદ થાય જ છે. જેટલી પણ ફિલ્મો શૂટ કરી છે છેલ્લા 4-5 વર્ષોથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, અને હવે આપણે અમદાવાદની ઇન્ડસ્ટ્રી એટલી સરસ મોટી થઈ રહી છે અને દેશ પ્રદેશમાં પ્રચલિત થઈ રહી છે, એની વચ્ચે આપણે આ લવ ઉત્સવ આપણે સેલિબ્રેટ કરવાના છે. સો લવ ઉત્સવ ઇઝ અ સેલિબ્રેશન ઓફ લવ બાય સ્ટાર પ્લસ. એક આખા મહિનાનો સેલિબ્રેશન છે આ. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સેલિબ્રેટ કરવાના છે. ઘણા બધા શોઝ લોન્ચ થવાના છે, ઘણી બધી નવી વાતો કરવાના છે આપણે. અને આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ ટુ બી launching Love Utsav today in Ahmedabad with Star Plus. So yes, it's a great honor for me. બ્યુટીફુલ મેમ. અને પહેલા તો બહુ જ બધા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે તમારા સપોર્ટના લીધે જે લાલોએ આજે હિસ્ટ્રી કરી છે. એબ્સોલ્યુટલી, લાલો તો આપણે કહેવાય ને કે યસ હિસ્ટોરિકલ ફિલ્મ, દરેક ગુજરાતી માટે ગર્વની વાત થઈ ગઈ છે કે લાલો હવે હિન્દીમાં પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે, અને લાલોએ ઓલમોસ્ટ 120 જેટલો કરોડનો બોક્સ ઓફિસ કરી લીધું, એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય ગુજરાતી ભાષા માટે, ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, અને ખાલી ગુજરાતી નહીં, રિજનલ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ઇન્ડિયન ફિલ્મ્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ. સો યસ, એટલે કેવું કે મેમ કચ્છ એક્સપ્રેસ તો એ આખું વર્લ્ડ વાઇડ પહોંચી ફિલ્મ, અને બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે એક નેશનલ એવોર્ડ કે જે આપણે ગુજરાતી, હા એટલે નેશનલ એવોર્ડ્સ તો 3, પણ જે જોઈતો હતો એઝ એન એક્ટર નેશનલ એવોર્ડ આપણા માટે બહુ મોટી વાત છે. યસ. અને હવે હું એકચ્યુઅલી 2 લાઈન ગાવા માંગુ છું. પ્લીઝ કેન આઈ સિંગ સમથિંગ ફોર એવરીબડી? કેમ કે હું આવું અને ગાઉં ને એવું બની જ ન શકે. गोरी रे को चूंदड़ी ने कोरो को रुमाल मुझे हईने में उड़े हज उड़े रे गुलाल करे नानी नानी नथड़ी रे मोठी रे कमाल मुझे
हरे में उड़े हज उड़े रे गुलाल. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. એટલે એક્ટર, સિંગર, પ્રોડ્યુસર, टू पुट माई वोट. और बहुत डर की बात ये है कि अब जमाना ऐसा है कि कोई भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोग अलग अलग भाषा में फिल्में देख रहे हैं. हम हिंदी भी देखते हैं, साउथ इंडियन भी देखते हैं, मराठी भी देखते हैं, और अब गुजराती फिल्मों का भी दौर आया है. और इस दौर में हम एक हिस्सा है. इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बढ़ रही है, और लालो के जो रिएक्शंस हैं, लोग इतना कनेक्ट हो रहे हैं स्टोरी से, परफॉर्मेंसेस से, गानों से. तो बहुत गर्व की बात है कि अब हिंदी में ये फिल्म आ रही है. तो लव उत्सव जो पूरा महीना जी. आप बोल रहे हो कि चलाने वाले, हाँ ये इसके साथ में बीच में वैलेंटाइन आ जाए. हाँ करेक्ट. तो उसके बारे में आप कुछ बताइए. जब आप वैलेंटाइन जब जो आपके जमाने में या आप जब मैरिज लाइफ आपके जमाने में मेरा नहीं, आपने कैसे मनाया था, ऐसे पूछ रहे हैं. कवर कर लेता नरेश हूँ. भाई, जब आप और हाँ आपने कैसे मनाया था ऐसे? हाँ हम बस तो बस हमें वैलेंटाइन पता से ही रोज मनाते हैं. आई थिंक एक दिन क्यों, हम तो रोज ही मनाते नहीं हैं. नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा है हमारे आपका. जमाने में वैलेंटाइन डे कैसे मनाते थे? मयूर मैं भाई वही कवर बोली कर कि लो. हम तो रोज मनाते हैं. नहीं नहीं, प्यार का कोई एक दिन नहीं होना Absolutely, चाहिए. प्यार absolutely. का तो सेलिब्रेशन रोज ही होना चाहिए. और आजकल के जमाने में जब सब इतने स्ट्रेस में होते हैं, काम को लेके, इतनी सारी चीजों को लेके, तो हल्की सी एक मुस्कुराहट या एक अच्छा सा एक गरम कॉफी अगर आपके लिए कोई बना दे, या आप अच्छे से अपने परिवार के साथ शांति से बैठ के अगर खाना भी खा ले, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी आजकल के दिनों में. तो सेलिब्रेशन तो प्यार का रोज होना ही चाहिए. और इसलिए स्टार प्लस अगर ये जो महीने भर का लव उत्सव लेके आया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार प्लस की जो कहानियां हैं वो दुनिया भर में कितने सारे ऑडियंसेस के साथ कनेक्टेड हुई है. मुझे याद है जब हम गुलाल करते थे, सुमित संभाले का भी किया, तो वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में, मकाऊ में, हांगकांग, बैंकॉक में, वहां के लोग भी हमारी सीरियल्स देखते हैं ट्रांसलेट करके. तो बहुत बड़ी बात है. स्टार प्लस इसमें बहुत का नाम इसमें नंबर 1 है प्रोग्रामिंग के लिए. और स्टार प्लस में बहुत सारी अलग अलग कहानियां भी दुनिया को दिखाई है, जिसमें प्यार बरकरार है. और आज जो शो की बात हम करने वाले हैं, उसकी तो बात करने ही वाले हैं. बहुत प्यारा शो है. शो का नाम, शो के एक्टर्स सब हम रिवील करेंगे एट द राइट टाइम. आई एम होपिंग दैट रूपाली कैन जॉइन द जूम कॉल. इज इट हैपनिंग राइट नाउ और नॉट, वी डोंट नो. ओके, तो तब तक तेजस, कैन यू जस्ट गिव एन अपडेट? शुड वी वेट फॉर द जूम कॉल? शुड वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द शो? She's joining right away. So like Rupali show, Anupama, मतलब it's become the number 1 show since, it's been the number 1 show since the last 4-5 years. ये बहुत बड़ी बात है आजकल के रील्स के जमाने में, जहाँ सबका अटेंशन स्पैन इतना कम है. स्टार प्लस अभी भी अपने शोज से ऑडियंसेस का दिल जीत रहा है. एंड या માનસી, Yes. મારો એક સવાલ છે. બોલો ને. તમે મુંબઈથી છો, being a મુંબઈકર, હા. આજનો દિવસ મુંબઈ માટે બહુ જ મોટો અને હા. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Yes. છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં આપણે જોયું છે કેટલા બધા સત્તા પરિવર્તન થયા, બહુ બધા કોમ્પ્લિકેટેડ ઇક્વેશન્સ પોલિટિકલ પાર્ટીસના થયા છે. એઝ અ મુંબઈકર તમારે શું કહેવાનું છે આજની મુંબઈ વિશે? કેવી સત્તા અને કેવા મેયર જોઈએ? See, BMC, I think Bombay is one of the most complex cities we have in the country, because the amount of concentration of people, business and power that there is in one space पूरे इंडिया में कहीं नहीं है. तो BMC का रोल जो है बहुत ही बड़ा रोल है हमारी सिटी में, बिकॉज जिस हिसाब से वहाँ कंस्ट्रक्शन, जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है सिटी में, हर जगह मेट्रोज और नए रोड्स और इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है सिटी में, तो ऑफकोर्स आज के इलेक्शंस का बहुत बड़ा महत्व है. हर नागरिक को, मुंबई के हर सिटीजन को जाना ही चाहिए वोट करने के लिए. और मेरा भी जैसे ही खत्म होगा, मैं जाने वाली मुंबई वोट अपना देने के लिए, बिकॉज बहुत जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और हमारी BMC को सपोर्ट करने की. जो काम वो कर रहे हैं मुंबई को
वर्ल्ड क्लास लेवल। अगर आप वर्ली सी फेस पे जाएंगे और वहां का पूरा जो प्रोमेनाड बना है, अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दुबई या सिंगापुर में हैं। इतना अच्छे से वो पूरा डेवलप हुआ है। और जिस हिसाब से अलग अलग वर्सोवा से लेके कोलाबा तक का पूरा जो कनेक्ट हो गया है, अटल सेतु जो हो गया, बन गया है, इतनी सारी अमेजिंग ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बीएमसी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिटी टू डू कंस्ट्रक्शन इन, बिकॉज यहाँ बारिश भी होती है, ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं, उन सब के बीच वो कंस्ट्रक्शन का काम प्रक्रिया છે। અને અહીંયા મારા અમદાવાદમાં એટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, અને મુંબઈમાં છે ને આ લેવલની ઉત્તરાયણ નથી થતી। થાય છે પણ મલાડ, કાંદિવલી, બોરીવલી એ એરિયામાં વધારે થાય છે, આ ગુજરાતી વધારે હોય ત્યાં। પણ અમદાવાદમાં બધા ઘર ઘરે થાય। અને પછી આપણા તિલગુડ, એટલે મરાઠીમાં કે ને તિલગુડ, ગોળ ગોળ બોલા, તો તલના લાડવા, પછી મમરાની ચીક્કી, બધા अलग अलग આપણા બોર, કરેક્ટ। એટલે આ બધી વસ્તુઓ મજા પડે, આનંદ થાય। અને ઇન્ડસ્ટ્રીના ઘણા બધા એક્ટર્સ છે જે દરેક બોર્ડમાં બધા પહોંચી જ જાય અગાશીએ। એટલે હું પણ આજે જવાની જ છું, કેમ કે મને બહુ પતંગ ચગાવવાનું આવડતું નથી, પણ મારો ઉત્સાહ તો એકદમ છે। યસ, चाहे उन क्वेश्चन ना હાજી। लव इज एटर्नल व्हाई यू सेलिब्रेट ओनली फॉर 1 month Sorry, I didn't get it. ना लव इज एटर्नल Love is eternal. एटर्नल Yes. व्हाई डू यू सेलिब्रेट ओनली फॉर 1 month Only for 1 month 1 month. Well, I'm sure. But the thing is, they are celebrating it with public in live, with live audiences for a month. But ये celebration तो वो कंटिन्यू रखने ही वाले हैं स्टार प्लस, कंटिन्यूसली उनके प्रोग्रामिंग के थ्रू। और यही वो कहना चाहते हैं कि वो प्यार, तकरार, इकरार, ये सारी चीजें जो है प्यार से जुड़ी हुई, उनका सेलिब्रेशन होने वाला है कॉन्स्टेंटली स्टार प्लस में। मैम अभी वो आते हैं हाँ, Yes, 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 आ रहे हैं। हाँ? I agree. Yeah. Whatever the team says. आप सुन सकते हैं? Hi, Rupali, we miss you. Well, I was a little under the weather, hence I'm at home today. Oh, Yeah, I'm so sorry I couldn't make it. I wish I'd known you were there. Sending you lots of hugs. lots of hugs to you and your cutie. Oh, is that your daughter? Oh, that's not that's your daughter. Yes, she is. She's my daughter. Oh, and so that's cute. My son. Rudransh, come say hi. I haven't met your daughter. I met your son you, when he was a yes, baby. you met Rudransh, who's grown Rudransh. taller than me now. Wow. That's him. Hi, Rudransh. Such We are all a up cutie. 12. Wow. So cute. Chalo, it's a good Star Plus event happening there, and I'm not there. I'm just feeling so left out. Tell us about the elections. Have you voted there? So, तो वेलकम मैम। Thank you, thank you. पहले तो पूरे गुजरात की ओर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, पूरे गुजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्योंकि यहाँ की बहुत सारी महिलाएं, उनका दिन खत्म नहीं होता जब तक वो आपको देख ना ले, है ना? और काश ऐसा ही रहे हमेशा। ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लव्ड जो फेसेस है उनमें से हैं। और हम बहुत खुश हैं आज की लव उत्सव सेलिब्रेट करने जा रहा है। आज से लॉन्च हो रहा है गुजरात में, है ना? और स्टार प्लस की ओर से अगर आप यहाँ होते तो हम ज्यादा खुश होते, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन तो हैं हमारे साथ। नहीं, आऊंगी, जरूर आऊंगी। बस मुझे कुछ 2-3 दिन का समय दे दीजिए। थोड़ी सी आज ज्यादा गड़बड़ होगी, नहीं तो ऐसा होता भी नहीं है कि मैं तो बुखार में भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा गड़बड़ होगी, इसलिए मैं नहीं आ तो पाई। ये वादा रहा, आपने बोला है आऊंगी, तो फिर बिल्कुल। हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज मैम, अभी तो मुझे स्टार प्लस और ये लव उत्सव के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ बातें करनी है। हमारा जो मीडिया भी यहाँ पे कब से वेट कर रहा है, तो प्लीज आप पहले स्टार प्लस और लव उत्सव के लिए कुछ कहें प्लीज। सारे मीडिया वालों को, उपस्थित मीडिया वालों को वहां पर मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण। आज अनुपमा के रूप में नहीं हूँ लेकिन अनुपमा इज माई ऑल्टर ईगो। तो आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। आई कैन सी मानसी, बट अगर आप थोड़ा सा मुझे उस तरफ दिखा दें कि कौन कौन है, तो मैं जरा सबको प्रणाम कर दूँ। कैमरा अगर थोड़ा मूव कर सके सबके सामने। जी जी।
हाँ, तो ये मैं हूँ। अच्छा, हाय है, मैम। है। हाय। और अगर ऑडियंस को भी आप दिखा सकते जय श्री कृष्ण आप सभी को। गुजरात केम छो? ओके, नहीं घूम पाएगा कैमरा? हाँ, दिखे, सारे दिखे। ठीक प्रणाम है, प्रणाम ओके प्रणाम। ओके ओके, ग्रेट। जी। तो सवाल करिए कोई बहन। हाँ करिए। મને બહુ ગુજરાતી નથી આવડતી, થોડી થોડી माइक આવડે का છે। यूज करेंगे हम, तो क्या है कि आ सके प्रॉपर तो तब आवाज। हेलो, हाय रूपाली। हेलो जी, नमस्कार। कहिए। आई एम दर्शना जमींदार फ्रॉम गुजरात हेडलाइन। नमस्कार। I would like to say, have you voted for the elections in Maharashtra? मैं इनफैक्ट शाम को 5 बजे तक है, तो मैंने अभी मेरे भाई को फोन करा है। वी आर गोइंग टू गो बिकॉज माय वोट इज स्टिल एट माय मम्मीज प्लेस इन वर्ली। So we are just going to head out as a family, all of us, and because बच्चों को भी लेके जाना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि वो भी जाने कि हमारे संविधान का ये बहुत अहम हिस्सा है। And it is voting and is one of the biggest festivals of India, and everybody should participate in it. So अभी बस जाऊंगी थोड़ी देर में। So what are you going to announce today for Star Plus? Announced for Star Plus, lots of new content coming up, but also the old content is gearing up for competition, and कमर कस के सभी मेहनत कर रहे हैं। और बिकॉज एक तो अनुपमा और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिनके 5000 एपिसोड हो चुके हैं। अनुपमा is 1800 and counting, so it is a competition for all of us to stay relevant today, to bring up topics that connect to the audience, to जो प्यार हमें सभी से मिलता है, सारे ऑडियंस से मिलता है, उसे बरकरार रखने के लिए और मेहनत करते रहें, और जद्दोजहद करें, और अच्छी स्टोरीज लेकर आए, और आजकल जो चल रहा है उसके पर्टेनिंग टॉपिक्स लेकर आए। जैसे अभी मैंने कुछ आई थिंक परसों या 2 दिन पहले के एपिसोड में हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात उठाई थी। और ऐसी ही चीजें, जैसे चाहे आप वोकल फॉर लोकल हैं, या फिर जो पर्यावरण के बारे में है, या फिर जैसे पितृपक्ष में ही आप क्यों बेजुबानों को खाना खिलाते हैं। आपको पूरे साल खिलाना चाहिए, क्या सिर्फ पितृ एक ही दिन खाना खाते हैं? तो हर रोज किसी बेजुबान को जो खाना नहीं मांग सकता, हम तो खाना खरीद के खा सकते हैं, और भूख जब लगती है तो सबको पता है कि कितना कष्ट होता है। तो किसी बेजुबान को आप खाना खिलाएं। तो ये चीजें जो इट मीन्स दैट महिलाएं अपने आप को ना भूलें, आप परिवार को प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है। विमेन हैव दिस थिंग अबाउट बीइंग द मोस्ट गिविंग। वी आर गिविंग, राइट? इसलिए हर एक की जरूरतों को, हर एक को अपने आगे रखती हैं, खुद पीछे होकर फैमिली की गाड़ी आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अनुपमा के जरिए एक चीज कहना चाहते हैं हम कि आप खुद से प्यार करना मत भूलिए। आप डू नॉट फॉरगेट सेल्फ लव, डू नॉट फॉरगेट सेल्फ वर्थ। ये जरूरी है कि आप अगर अपनी कदर नहीं करेंगे तो फिर दुनिया क्या ही करेगी। आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया क्या ही देगी। और जैसे अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि कोई आके हमें रेड रोज दे दे, हम किसी को जाके फूल दे दे, हम किसी को आई लव यू कह दे। मैं कहना चाहती हूँ कि हर महिला को, चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो, चाहे वो 60 साल की क्यों ना हो, चाहे वो 80 साल की क्यों ना हो, आप आईने के सामने जाकर प्लीज 2 मिनट अपने साथ बिताइए और अपने आप से कहिए कि आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी। खुद की पीठ को थपथपा के शाबाशी दीजिए, और हो सके तो अपने लिए कुछ गजरे ले लीजिए, अपने लिए कुछ फूल ले लीजिए, अपने आप के साथ वैलेंटाइंस बना के भी देखिए। That is such a correct thing, Rupali, because self love इतनी important चीज है, and as women हम भूल जाते हैं, because women का होता है कि मल्टीटास्किंग करते हैं, तो बाहर का भी देखते हैं, घर का भी देख रहे, या किचन में ये बना कि नहीं, अच्छा ऑफिस में ये हुआ कि नहीं, एंड एज वर्किंग women हम भी यही फेस करते हैं। सो दिस मैसेज इज वेरी वेरी ट्रू
And I'm so happy that Star Plus through its stories and you through Anupama, Yes. आप ये message constantly. वर्किंग वुमन Yeah. एंड औरतें भी आज के जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, पीछे रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो औरतें किसी भी चीज में मर्दों से कम नहीं है। और एक और चीज रूपाली मुझे बोलनी थी कि हम एज विमेन हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कर लेना चाहिए, पर कभी कभी हमको रियलाइज करना चाहिए कि नहीं, वी नीड अ टीम ऑफ पीपल अराउंड अस, और सब एक साथ मिलके हमें सपोर्ट करेंगे तो ही एक पॉसिबल चीज है, बिकॉज that is so true that we need a village. फैमिली इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। एंड जैसे कि आई थिंक कौन सी फिल्म में था ये मानसी? हाँ मतलब हाँ वो ये जवानी है दीवानी। हाँ, तो वो जब नैना टेल्स बनी कि बनी आप कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही। करेक्ट, तो वो जो छूट गया उसका गिल्ट छोड़ो, जो मिला है उसको चेरिश करो और आगे बढ़ो। एब्सोल्युटली, व्हाट अ पॉजिटिव थॉट। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप दोनों जो बोल रहे हो कि महिलाएं थोड़ी भी कम नहीं है, महिलाएं बहुत बहुत आगे हैं और हमेशा से हैं। बहुत ही सच बातों को बुला लूं यहाँ पे। तो प्लीज वेलकम, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आशीष राघव, जिन्होंने बहुत अच्छे से थिएटर किया, थिएटर के बाद वेब सीरीज एंड देन बहुत सारे शोज, अपने एक्टिंग के जलवे बिखरा। जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और जाते जाते मैं आपका वादा फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको आना है गुजरात। मैं आऊंगी जरूर, पक्का गुजरात से मिलने जरूर आऊंगी। हम बहुत साथ सारा आएंगे प्यार। रूपाली, मैं आपको लेके आऊंगी इधर अहमदाबाद, और हम यहाँ पे वाह, ऐसी मानसी, जगहों पे आपके जाएंगे। साथ अगर मुझे गुजरात घूमने मिले, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो मैं आपसे भी वादा लूंगा, मुझे बुलाना। 100% श्योर। जरूर। Thank you so Take care, much. God bless. Lots of All love the from very Gujarat. Thank you so much, Rupali ji. Thank you. Star Plus rocks. Thank you. Bye. So to you, मानसी जी। यस, तो जब हम प्यार की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम बात करते हैं पहले फीलिंग्स की, फर्स्ट लव, एक उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये सारी चीजों की बात तो करते हैं। लेकिन स्टार प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो लेके आ रहा है 19 जनवरी शाम को 7 बजे से, जिसका नाम है तोड़कर दिल मेरा। और दिल टूटने की बात जब होती है तब बहुत सारा दुख होता है, घाव होता है, ये सब तो होता है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टाइटल इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन है शादी के साथ। और शादियां तो हम सबको पता ही है कि ईश्वर की देन है, ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी बचता है, ना खाए वो भी बचता है। और लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो इंडिया का बहुत बड़ा टॉपिक है, आजकल के जमाने के जो यंग कपल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि नहीं, हम प्यार में पड़ेंगे फिर शादी करेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारा ये कपल है उनकी अरेंज मैरिज हुई है। और अरेंज मैरिज के बाद क्या क्या होता है इनकी जिंदगियों में, कैसे अलग अलग से वेरिएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और दो लोग जो एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे अब हर पल एक साथ बिता रहे हैं, एक जीवन साथ बिता रहे हैं, उसमें क्या क्या तकलीफें होती हैं, प्यार होता है, कैसे होता है, शादी के बाद वाले प्यार की बात है तोड़कर दिल मेरा। तो आपका क्या कहना है? डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? डू यू वांट टू गो फर्स्ट? So this story is about a guy and a girl. अच्छा, एक ऐसी लड़की की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दोनों ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और शादी होने के बाद प्यार को डिस्कवर करते हैं एक्चुअली। और ये ऐसा प्यार है कि जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, मतलब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से राज रोशनी के जो प्यार दिखाता है वो उसके आसपास ही है। मतलब एक जैसे नॉर्मल लाइफ में बोलूं कि एक एक्टिवा सबके पास होता है, खाना हर कोई खाता है रात को, ठीक है। तो नॉर्मल जिंदगी में क्या हो सकता है कि एक हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया और वो खाना खा के सो गए, लेकिन यहाँ पे प्यार ऐसा है कि राज को पता है कि रोशनी को बिरयानी पसंद है, तो वो उसको एक्टिवा पे बिठाता है और दोनों बाहर जाते हैं और बिरयानी खाते हैं जो दोनों को पसंद है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप रेगुलरली प्यार में करते हो, जो विच कीप्स द लव अलाइव,
सो यही हम डिस्कवर कर रहे हैं इसमें कि कैसे राज रोशनी के लिए क्या क्या वो चीजें जो वो कर रहा है प्यार में, और रोशनी भी ऐसी बहुत सारी चीजें कर रही है प्यार में। प्यार पहले राज को होता है लेकिन रोशनी को ज्यादा होता है। सो यही है पूरी कहानी, इसी तरीके से है कि जो और कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हम भी कर सकते हैं। हम जो भी चीजें कर रहे हैं स्टोरी में, जो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ द वे जाके करना है, सब आस पास ही है, वैसा वाला ये स्टोरी है। राघव जी, आपने स्टोरी का जो बताया वो लव बताया, लेकिन टाइटल तो तोड़कर दिल मेरा। तो वही तो है, आपको देखना है शो को कि अगर प्यार की बात है लेकिन टाइटल है तोड़ के दिल मेरा, तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने ये कही कि हम जब बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो हमको लगता है प्यार है शाहरुख खान के जैसे पोज में खड़े रहना और साड़ी उड़ रही है हवा में और लोग प्यार भरे गाने गा रहे हैं और बड़े बड़े जेस्चर्स हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हो रहा है। लेकिन रोजाना प्यार, शादी का प्यार होता है वो छोटे छोटे पलों में ही होता है, छोटी छोटी चीजों में होता है कि एक मैसेज कि आप घर कब आ रहे हो, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, या वो आके और एक बोल रहे हैं कि चलो आज आइसक्रीम खाने जाते हैं। ये सारी छोटी चीजों में तो प्यार है। तो राज और रोशनी, राइट, राज और रोशनी का जो ये प्यार है उसके बारे में अब रोशनी में थोड़ी रोशनी आप डालिए कि कैसा आपको पहले उनको प्यार कैसे हुआ, फिर आपको ज्यादा प्यार कैसे होने लगा है? सेंटर कैमरा लो। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, रोशनी और राज दोनों ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। रोशनी का बैकग्राउंड है कि बहुत ही इंटेलिजेंट का गर्ल है, एक लॉयर है, बट उसका हमेशा से ड्रीम एंड एम्बिशन रहा है कि वो फैमिली बसाना चाहती है, एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहती है, इसलिए वो शादी करना चाहती है। एंड देन वो राज से मिली, उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था एक छत पे, एंड देन दोनों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि हाँ वो रेडी है एक स्टेप लेने के लिए, शादी का स्टेप लेने के लिए। इसलिए ये कहानी मोस्टली वही होता है कि अरेंज्ड मैरिज के बाद कैसे दोनों का बॉन्ड डेवलप हुआ ग्रेजुअली, कैसे दोनों प्यार में पड़े। जैसे शादी के ठीक बाद जब रोशनी ने पहली बार कन्फेस किया कि उसको चिकन बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और राज ने एक बहुत ही स्वीट सा जेस्चर दिखाया कि सब सो गए, घर वाले सब सो गए, लेकिन उसके बावजूद राज रोशनी को बाहर लेके गया, चिकन बिरयानी खिलाया। उसके बाद एक दिन बाद मुंह दिखाई का फंक्शन होता है, राज ऑफिस में गया हुआ होता है, बट फॉर सम रीज़न वो अपना टिफिन भूल गया होता है। बट वो फिर रोशनी को बोलता है कि मैं अपना टिफिन भूल गया, फिर बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि आप हो सके तो आप लेके आ जाओ, बट रोशनी इज लाइक नहीं, अभी तो इतने सारे लोग हैं तो इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। बट फॉर सम रीज़न वो एक सोल्यूशन निकालती है, वो प्रिटेंड करती है, एक्ट करती है कि वो बेहोश